Hi, this is Tanima Bhattacharya. Hi, this is Chetan Sharma. And you are watching Bollywood Hungama. Well, an award-winning film, Sakal, is releasing on November 28th. I've seen it. It's a very different film. It's about a very important, socially relevant subject that people should watch and just understand that there are so many social evils that are there which we are not aware of, and we should be thankful that we are not subjected to that in many ways. And we have with us the star cast of the film, Tanima Bhattacharya as well as Chetan Sharma. Tanima has won 4 awards so far, or not merely in India but abroad as well. So first of all, pleasure having you guys on Bollywood Hungama. Thank you so much. And ऐसे बोलना पड़ेगा ना, keep rocking. It's like Bollywood Hungama. Yeah, thank you so much, Bollywood Hungama. Yeah. Okay, so how do you feel that now I've been talking to you for quite some time now, and finally your film is releasing on November 28th. It's been a tough journey. First of all, how's been the journey? First of all, after the post-release, both the fact that you've showcased the film at many film festivals all across India, as well as the world, and won awards as well. But at the same time, आप लोगों को release करने में आप लोगों को time लगा. So if you can talk about that journey, that'll be wonderful. Why not? That because it's a very good question, क्योंकि हम दोनों ने, even sir, हमारे जो director sir हैं, आप मिले हैं, दैदिप्य जोशी जी हैं, हाँ, हम सब ने बहुत पापड़ बेले release करने के लिए. See, very truly it is like the corporate world, you know, because you are also so much of in commercial films and all. Corporates जो हैं, उनको चाहिए होता है कि भाई what is there in the film, who are there in the film, and all those kind of things. तो हमें कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कहीं से कुछ. Actually they are good in their part because the way they are working, they had asked for the same rules, which the point is like हम लोग independent filmmakers जो होते हैं, हमारे पास उस समय वो चीज़ में तैयार होके उनको देने के लिए there was no fund or something like that, you know. So that was the reason that it took so much of time. जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, उसके अंदर इंडिपेंडेंट फिल्म्स विद लेस और नो बजट, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि टू डू PR एंड अदर थिंग्स टू स्टे इन मार्केट एंड अपनी अवेयरनेस फैलाने के लिए. सो आई थिंक हमारी फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा, जिसकी वजह से इतने सारे फेस्टिवल्स में हमें अप्रिशिएट किया गया, वो कहानी, जो हमारी कहानी थी, जो कि बहुत ही नई थी, बिकॉज इट्स वेरी न्यू फॉर एवरीवन कि एक ऐसा ट्रेडिशन रहा है जहाँ पर अभी भी है, हालांकि अभी भी है छुपे ही सही, लेकिन हम दोनों गए थे, we met them. Right. Yeah. Okay, so let me tell you that what the basic premise of the story is, कि that करीबन 10 से 12 साल के लड़के, and they get married to women who are above 25 years of age because of certain factors, and how it leads to more inequalities and complications as far as relationships are concerned, and how physically the women, they are subjected to certain misdemeanor which just takes away their dignity as well. तो ये एक कहानी है जो कि अपने आप में बहुत, I think आपने जैसे कहा कि बिल्कुल नई कहानी है, नए तरीके से प्रेजेंट भी इनफैक्ट किया गया है. और उसमें जैसे he is playing a boy who's younger than Tanima, and they end up being husband and wife, and what really happens after that. It's very interesting, and कैसे जो है उनको खुशी भी मिलती है, लेकिन खुशी जो है वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि ओएसिस, जैसे रेगिस्तान में ओएसिस होता है कि वो आपको एक इल्यूजन के तरीके से होता है, and then it's not there. So that sort of happiness they manage to get, and it's pain all the way. So कहानी बहुत दिलचस्प है, and especially I think girl child के point of view से बहुत important है, and finally there's a positive ending to it as well. Yes. How important is it film like this that ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको, और एक अंदाज़ा लगाएं कि that किस तरीके का तकलीफ लोग गुजरते हैं रियल लाइफ में भी. आप एक्चुअली फिल्म मेकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वो कहानियाँ लेके आते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, एंड जो कि
जानना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों के जीवन में ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है किसी समय पे। तो हमारी फिल्म जो है ये मतलब हमने फिल्म मेकिंग को उस तरह यूज़ किया कि ऐसी एक कहानी रही है पास्ट में हमारे, जो कि काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में भी आया था और एक समय पे वो कुछ हिस्सा भी रहा था खबरों का, लेकिन फिर हमारे डायरेक्टर सर वो बेहतर जानते हैं कि किन रीज़न से उसको खबरों से हटाया गया। खैर, तो जो घटनाएं घटी वो बहुत ज़्यादा विभत्स थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी फिल्म जो आपने जो देखी ना, उसमें 5-6 घटना को मिला के वी मेड इट अप। बिकॉज अगर हम एक एक जन के घर पे जाएंगे ना, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी, बट अभी वो शेयर नहीं करते हैं, वो उसी में खुश रहते हैं। बट हमारे सर ने जो किया वो ये था कि उनका कहना ये था कि इसको एक पॉजिटिव एंड देना है। जैसे आपने बताया कि एंडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, भले ही पूरी फिल्म में हमें वो दर्द दिखाने को मिला, जो ही इज़ प्लेइंग केसर, आई एम प्लेइंग अबीरा। तो केसर अबीरा मतलब शादी के बाद वो एक इट इज़ नॉट ओनली दैट वुमेन्स लाइफ, यू नो, दैट इज़ हस्बैंड वाइफ लाइफ वाज सफरिंग ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें पॉजिटिव इसलिए था कि जैसे आपका सवाल था कि आज उसके लोगों में कैसे उसका इफेक्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े। एंड दिस वेरी नाइस टैगलाइन ही रोट, our film is called Shankle, like it's shackle, and he wrote the tagline, it's break the shackle. So you know, we have to break the shackle. What we can do, we just can make the film and can send it to the people. Please stand up and do something for them. Right. In fact, both of them, they are playing husband and wife in the movie, and real life में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. So how much has it translated in real life, if we can ask, because आप काफी supportive हैं. We are besties. We are besties. Okay. Yeah. मैं तो ऐसे कहती हूँ that see, I'm a very big fan of him. He's like super duper actor in front of my eyes. अच्छा. And I always say he's the bestest friend in my life in the world. Right. So बाकी ये बताएंगे. हाँ जी. We are very good friends and we are very comfortable in each other's company. ये we are very good friends, ये magazines में कहाँ पढ़ा है मैंने? Everybody. We are very just good friends. Okay. Industry. हाँ अच्छा. Oh. Industry. Yes. हाँ जी बताएं. So it has been like that and इतना ही नहीं, मतलब तनिमा का काम मैंने भी बहुत पहले से देखा है. So तब मैं दिल्ली में था, मतलब it must be some 5-6 years back when she was doing a show for television and she was very good in that. So when I came to Mumbai and I got to meet her and Dadipya sir, तो फिर I was very glad that I met a good actor. Her sensibilities about acting are very good, so I like that fact and हाँ. So नहीं, हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल जो भी है उसमें ऐसे कुछ नहीं है. That is it's fine actually. That is भाई भावनाएं हैं, emotions हैं, वो आदमी बह जाता है उसमें, ऐसी की बात नहीं है. Alright, now coming back to the aspect of it, you know, when I was watching the film, I literally was having like एक होता है ना that एक heavy heart होता है that even जैसे जिस तरीके के certain sexual exploitation है, वो अपने आप में इसको कहते हैं कि उसमें आप you can't find like any sort of pleasure in it. It is something which is painful. Yeah. Because you're seeing that it's not merely exploitation. It's the exploitation of the situation which is being done, which in itself is extremely painful as well. The way it is showcased, and it's heartbreaking. The way it just keeps on moving, it can be quite heartbreaking as well. Was it tough for you to just because this is your first Hindi film? Because you know it's not easy. I think many actresses they'll think twice or thrice or many times to just maybe you know just let yourself be in front of the camera and without any inhibitions. It requires quite a lot of courage and guts as well. Yeah, true, very true. See, honestly, I must say one thing, that is, this was really very tough to play, to portray that character. क्योंकि हम जो
2017 में हम जिस तरह जी रहे हैं और जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया वो लोग 2017 में जिस तरह से जीते हैं, इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन दैट विच वी कांट थिंक अबाउट एक्चुअली। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम वेरी चूजी अबाउट माई कैरेक्टर, मैं कुछ भी करूँ। तो सर ने जिस दिन ये लिखना शुरू किया था या उन्होंने सोचना शुरू किया था, एंड देन दैदिप्य सर टोल्ड मी दैट तनिमा देयर इज़ अ कैरेक्टर आई एम पोर्ट्रेइंग my script who is like this kind of a lady. So from that first day I wanted to do this project because जो आपको feel हुआ about that woman, you know, that means at least मैं कुछ justice कर पाई उन सारे जितने भी वहाँ पे अबीरा जैसी औरतें हैं। That was very important for me. So मैं अभी भी कह रही हूँ तो it is like goosebumping। तो वो It was really not so easy. And honestly, another thing, जैसे आपने हालांकि आपने थोड़े मस्ती में ही सही पूछा, लेकिन it was not possible without the co-actor with whom you are acting. You know, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ जो एक्ट कर रहे हैं तो आपके उनके वेवलेंथ कैसे मैच होता है, केमिस्ट्री क्या है ऑन स्क्रीन, आपका एक्सप्रेशन क्या सामने से आ रहे हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर दैट, आई मस्ट से। इवन इफ ही इज नॉट देयर ऑन स्क्रीन, he was there. So that was a very big thing. And फिर हमारे डायरेक्टर सर जो हैं दैदिप्य जी, उनका सपोर्ट, he is like parent to both of us. It's like a second home in Bombay for us. So it made me easy to go ahead and to do this character. But हाँ, एक दिन ऐसा आया था, अगर आपने क्लाइमेक्स देखा होगा जहाँ पे करीब करीब मेरे शायद 3 पेज के डायलॉग है और वो इट वाज लाइक very good dialogue, very good scene actually। हाँ, तो वो कहीं बोलती नहीं है, वो लड़की जब बोल पड़ती है तो वो करीब 3 पेज की डायलॉग है। और हमने उसको 2 बार टेक किया था। फर्स्ट डे इट वाज अ नाइट एंड देन इट वाज अ डे मॉर्निंग, कुछ सर को चाहिए होगा, इट वाज लाइक वन टेक काइंड ऑफ। That day was very difficult for me. I took a half an hour break and I cried like mad. I said I was not able to do it, I think so till date. मैं अभी भी मुझे लगता है कि वो सीन शायद और बेहतर हो सकता था क्योंकि मैंने सर को कहा था सर मुझसे नहीं हो रहा है, मैं वो पहुंच ही नहीं पा रही हूँ जहाँ तक वो औरतें हैं उस समय। तो हालांकि सबने कहा नो नो यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग गुड, सब जैसे आपको अब सबको अच्छा लगता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरा गला कांप रहा है। That was very difficult for me, seriously. No, obviously, I think that is one scene that gives you enormous scope to showcase your talent, and obviously, if people just look at that, and casting directors and other I think people within the film industry, once they watch that scene itself, that in itself can tell them that as to what sort of actress you are and what potential which is there. You have I think some very important scenes with Milind Gunaji. Milind Gunaji का भी काफी एक बहुत अहम रोल उसके अंदर है, एक पॉजिटिव रोल है, which is I think सूत्रधार एक तरीके से, और किताब लिखते हैं, एंड ये भी एक चीज़ उसमें दर्शाता है कि भाई सारे मर्द जो हैं वो exploitative नहीं होते हैं. There are men who are like feminists in their own right as well and very supportive and fair as well. उनके साथ में काम करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? बिकॉज वो काफ़ी मजे हुए कलाकार हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं. उनके साथ मतलब उनको मैंने बहुत देखा, उनको बहुत सारी मूवीज़ उनकी देख रखी हैं, तो ये मेरा पहला साक्षात्कार था उनके साथ. दिस वाज फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद हिम, सो आई वाज वेरी ग्लैड. एंड इवन ऑन सेट ही इज़ अ वेरी कूल गाय. उनके साथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है. वो बात करते हैं जब एक्ट नहीं कर रहे होते हैं तो बात करते हैं आपके साथ में, और उनका पूरा इंटेंशन रहता है कि भाई जितनी एक दूसरे से समझ मिल जाए उतना अच्छा. तो वो बहुत सपोर्टिव थे. उन्होंने जगह जगह पे मुझे अप्रिशिएट भी किया काफ़ी. सो आई वाज वेरी ग्लैड. एंड एज एन एक्टर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. वी ऑल नो दैट ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. सो एट पॉइंट्स ऑफ टाइम मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे लिए थोड़ा सा मतलब जो होता है स्टार स्ट्रक मोमेंट, आई वॉज ऑब्वियसली स्टार स्ट्रक, बट उसका मेरे परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं आया, बिकॉज आई हैड सम एक्सपीरियंसेस बिफोर साकल जो कि काफ़ी मिलते जुलते थे. आई हैड वर्कड विद मनोज वाजपेयी इन अ फिल्म, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेटरन. तो वो वाला फेज जो था मेरा,
वो उस तरफ वो उस मौके पर हो गया था. So by this time I knew how to deal with this situation, and yeah, that was very good experience. Okay, now apart from that, I think एक बहुत अहम जो रोल फिल्म में है वो आई थिंक आप लोगों की म्यूजिक का है और लिरिक्स का है. तो बिकॉज वन कैन से दैट इट्स एज गुड एज अ म्यूजिकल एज वेल. बिकॉज मतलब आप गानों से जो है पिरोते हैं सारा का सारा, कहानी वो आगे बढ़ती है. लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल हैं एंड बहुत गहराई है लिरिक्स के अंदर. एक ज़मीनी सच्चाई से बहुत मतलब ज़मीन की महक आती है, मिट्टी की महक आती है. सो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट द म्यूजिक, व्हाट आर योर फेवरेट लाइंस, फेवरेट लिरिक्स, फेवरेट सॉन्ग, अगर आप कुछ बताना चाहें. ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि म्यूज़िक जिन्होंने दिया है आप मानोगे नहीं. लिखना, म्यूज़िक देना और गाना, ये सब 4 जन हैं उसमें. वन इज शिवांग उपाध्याय, निशांत कमल व्यास, अंशुल व्यास एंड श्यामदा व्यास. ये 4 जन जो है ना, लाइक जेम ऑफ पर्सन. सीरियसली आई ऑलवेज सी दैट दे आर गॉड गिफ्टेड. और चारों की उम्र दे आर नॉट मोर देन 25 टिल डेट. तो इतनी कम उम्र के अंदर अगर जैसे आपने कहा कि इतनी गहराई है उस फिल्म को समझ के इस तरह से लिख देना, मतलब वी आर एक्चुअली थैंकफुल टू देम. वी आर थैंकफुल टू देम बिकॉज विदाउट दैट हम एक कहावत है, आपने तो ऑब्वियसली सुना ही होगा कि एक फिल्म सिर्फ और सिर्फ मेन आर्टिस्ट से नहीं बनती है. मैंने उत्तम कुमार साहब के बारे में आपने ऑब्वियसली सुना है. उत्तम कुमार साहब की एक मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था कि मैं कुछ नहीं होता अगर मेरे सारे टीम मेंबर्स मेरे साथ नहीं होते. सो इट इज़ लाइक दैट. हम दोनों शायद यहाँ पे आज नहीं होते अगर पूरे टीम मेंबर हमारे साथ नहीं होते. तो दैट 4 of them was seriously a big part of this film, big part of, even including BGM also done by Shivang only, right? Yeah. So और गाने का फेवरेट लाइन और आप बंगाली हैं तो आप गाना तो जानती होंगी. No, it was like there is one line which is 2 songs are there which is very famous. It's दिल दरिया दरिया हो ना जाए, वाह वाह, तुझसे मिलने का जरिया खो ना जाए. क्या बात है. हाँ, मुझसे बेहतर ये सुनाएंगे क्योंकि ये कवि है, लिखते रहते हैं. आप दोनों सुना दीजिए. देखिए अब तो मतलब हम तो I may be a good storyteller, but I'm a poor singer. नहीं देखिए, अभी वो इतनी तारीफ कर रही हैं, अब उनका दिल टूट जाएगा. आप ऐसा मत करिए. ठीक है. क्या बात है, मना नहीं करते कभी आपकी बात. बताइए, सुनाइए. तभी तो बेस्ट फ्रेंड है ना. बिल्कुल, वेरी गुड फ्रेंड्स. थैंक यू. चलो. भगवान. दिल दरिया दरिया हो न जाए, तुझे मिलने का जरिया खो न जाए, हर पल ये लम्हा फिसल न जाए. शिवू मारना मत प्लीज. Sorry. So there were 2 lines and another song which is actually seriously very close to at least my heart. I don't know about you. रंग तेरा पानी में घुला, आपने वो देखा होगा. There's only one song which is portraying the love between husband and wife. तो वो उस गाने के बारे में मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि सर ने कहा था, क्योंकि हमारी फिल्म जो है इट इज़ प्योरली अ कर्ल फिल्म, यू नो, कल्ट मीन्स आर्टिस्टिक जोन ज़्यादा है. तो वो जो गाना है रंग तेरा पानी में घुला, वो सर ने हम दोनों को दिया था. यू गाइस हैव टू कोरियोग्राफ दिस सॉन्ग बिकॉज आप लोग ज़्यादा कैरेक्टर में घुसे हुए हो, कैसे करोगे. तो हम दिन में शूट करते थे और शाम को गाना सुनते थे और हर एक नोट मार्क करते थे कि भाई इस बीट पे ये आना चाहिए, इस बीट पे वो आना चाहिए. तो दैट सॉन्ग इज रियली वेरी वेरी क्लोज टू आवर. सो इफ यू हैव सीन द फिल्म, तो entire song मैं समझ गया. हाँ, that has been choreographed 90% times by us. Yes. So that was very close. And don't tell me to sing that song. your intimacy as well. Yes. How you guys finally become intimate after all the turmoil and. वो एक turn point है. Yeah, and finally she gets the satiation that she was looking for. Yes. That was. So that's fine. But I think, and it's important that one should not trivialize those moments and one should not look at it frivolously as well, because I think it has been showcased in a very sensitive manner. Yeah. The entire thing I think comes across in a sensitive manner, and the entire physical intimacy and the display of emotion, it is
it should be looked at from in the right context. Yes, correct. It is important जो भी है. All right, so अभी what is the game plan now? 28th November you guys are coming out with the movie, and I think in 10 cities so far. Yes, 10 cities, 10 cities as of and now. 14 screenings we have 14? going to, yes. Yeah. All right, and if you want to give a message to people and why they should be supporting independent cinema, and so that more and more people can just can come up with more ideas and support Yes. this as well. आप शुरू कीजिए. So we appeal to our audiences that this film deals with this story in a very realistic way, and ये ऐसी कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने नहीं है. इट हैज़ बिन टू फिल्म फेस्टिवल्स एंड प्लेसेस अब्रॉड, एंड वहाँ पे इस फिल्म को बहुत ही सराहाया गया और बहुत तारीफ मिली है in terms of context, storyline, storytelling, as well as performances, as well as music. So it's a power-packed combo. You must be willing to you should be watching by the end of this month. So these are the things, and जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है जो हमारे फिल्म को देखने के लिए आपको बुलाती है, वो ये कि ये जो सच्ची घटनाएं थी, हाँ, जो ये रिचुअल्स थे, malpractice, तो all those rituals. ये एक्चुअली घटे हैं एक पॉइंट पे हमारे ही आसपास, और इसको किसी भी और फैंसी तरीके से दिखाया जाना शायद पूरी तरह से ही गलत होता है, क्योंकि किसी की भी ट्रेजेडी को आप फैंसी नहीं कर सकते हैं. वो जिनके साथ रहा वैसा, वो सच में बहुत पेनफुल. जो गुजरते हैं उनको पता चलता है कि क्या है. तो इसीलिए बस हम ये कहना चाहेंगे कि आप आइए. हम कलकत्ता, दिल्ली, पूना, बॉम्बे, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर 3 cities और let me come it out. कोटा, जयपुर, another one, Patna. Yes, I'm so sorry. I'm a lady Gajini, I always say cities. तो हम 28 तारीख को हमारी फिल्म सांकल लेकर आ रहे हैं. आप आइए. हाँ, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना क्यों और ज़्यादा चाहिए, something like that you asked. But that will be possible only if people support it. Correct. Yes, if people come to watch it. Yes, that is very important. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ सबकी तरह सारे वेटरन एक्टर्स से, जो हमने सीखा है कि जनता जनार्दन है. Oh my God, it's a Bengali term. Yeah. तो सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कम एंड सपोर्ट द इंडिपेंडेंट फिल्म, क्योंकि हम we actors are open for everything, we do commercial also, we do independent also, but जो मुझे ऐसा लगता है कमर्शियल फिल्मों में ऐसी रियलिस्टिक जो घटनाएं हैं वो बहुत कम दिखाई जाती हैं शायद. लेकिन हम सब कमर्शियल करना पसंद कर देखना भी और काम करना भी पसंद करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि आपको हम एंटरटेन कर पाए. हम जो भी पोर्ट्रे कर रहे हैं उसमें हम सुख दुख जो भी बांट रहे हैं हम आपके साथ जुड़ सकें. बट फिर भी इंडिपेंडेंट सिनेमा को जगह मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें घटती हैं जो शायद हम मिस कर जाते हैं, या उसकी खूबसूरती हो या उसके दर्द हो, उसको हम सामने नहीं लाते हैं. उसको भी लाना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे लगता है. तो इसके अंदर मतलब एक चीज़ ये कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे आसपास फैली हुई हैं, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और उन सबको बाहर लाने का एक ही तरीका है कि हम कैसी होनी चाहिए चीज़ें उसमें ना जीकर कैसी हैं चीज़ें उसको भी अप्रिशिएट करें, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मतलब जो है उसको कैसे तब्दील किया जा सकता है भले के लिए. सो इसमें थोड़ा सा हमें ट्रांसलेशन चाहिए अपने माइंडसेट के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर, सो दैट, क्योंकि फिल्म मेकिंग का जो कोर है वो यही है कि वो दिखा सके जो कि आपके आसपास घटता है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरह के इंसिडेंट्स रहे हैं. सो फॉर दैट थिंग कि सिनेमा का जो एसेंस है वो सर्वाइव करे और वो फ्लरिश करे. हाँ, मतलब दोनों चीज साथ में ऊपर आई है, लाइक कमर्शियल एंड इंडिपेंडेंट दोनों. और इंडिपेंडेंट फिल्म, शायद मुझे आपका कहना बहुत सही है, इंडिपेंडेंट फिल्म
लोग शायद इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि लोग जो ऑडियंस है ना वो बहुत कम आते हैं। मैं अगर आज शाहरुख खान साहब की बात करूं तो उनके स्वादिश अगर मैं देखूं और उनका फ़ैन अगर मैं देखूं, दोनों में जो अंतर है, और या मैं हालांकि उनकी कोई भी फिल्म नहीं छोड़ती हूँ बिकॉज इज़ अ मेंटर इन माई लाइफ, इज़ गुरु इन माई लाइफ। तो जो भी उनके कभी खुशी कभी गम या जैसे भी जो भी कमर्शियल फिल्में, और उनके सामने अगर मैं स्वादेश देखूं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो शाहरुख खान साहब ने जो स्टेप लिया था वो फिल्म करने के लिए, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। दीपिका पादुकोण ने भी जैसे व्हाट वाज दैट फिल्म विद नसीर साहब एंड ऑल, फैनी, यस, फाइंडिंग फैनी, यस। तो ये सारी जो फिल्में हैं, आई अडोर देम दैट दे आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, यू नो, बिकॉज they can change, that's why I'm saying that हम एक्टर्स जो हैं हम दोनों फिल्में करने को तैयार हैं, हम कमर्शियल करने को भी तैयार हैं, हम ये भी करने को तैयार हैं, बट ऑडियंस को आना मांगता है कि भाई आप लोग आइए, आप देखिए कि हो क्या रहा है। That is very important. No, absolutely. And I must also, at the end of it, I must also say that Tanima, as you mentioned, that she has won 4 awards for Sankalp. She has won at Ohio Best Actress, Ohio Festival, Shane Awad Festival in Lucknow. Yes. And Russia International Film Festival and Haryana International Film Festival. That is more recent. So I think that's commendable. The performance, I think, has to be seen to be believed. And even Chetan, he has given a very, I think, important performance. Not merely as an actor, but the fact that he is playing a feminist in the film, in a society which is totally it just stands for inequality and suppression of women. He stands to be a feminist, which is commendable. So as an idea, it is wonderful as well. एक बात सॉरी मैं बीच में कहना चाहूँगी। भावना को बिल्कुल समझ सकता हूँ। इनके बारे में इन्होंने खुद नहीं कहा होगा। कल्याण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है बॉम्बे में, आपको पता होगा शायद। जी। तो वहाँ पे ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट एक्ट्रेस, जहाँ पे सारे दिग्गज थे मराठी एक्टर के। ही वॉज द ओनली वन गाय हु वॉज नॉमिनेटेड एट फ्रॉम द फिल्म सांकल फ्रॉम हिंदी फिल्म। ये इन्होंने आपको नहीं बताया होगा, जरूर। वो आप ही बता सकती हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग कुछ नहीं जज कर रहे हैं, we are not judging at all, but that's wonderful actually. It's like that helps more to go. 100%, बिल्कुल, absolutely. All right, so thank you very much and congratulations once again for being a part of a film that hasn't been seen as much as it should be seen. It's a very good film, even in terms of when you see the camera work, the music, the background score, the way the movie flows. It is in a way entertaining as well because it is cerebral level पे entertaining भी है. So it is a film that should be seen by a wide number of people. अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है, and I hope that it happens and you guys get much more recognition that you deserve. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Tanima Bhattacharya. Hi, this is Chetan Sharma. And you are watching Bollywood Hungama.